جس یتیم بچے کو میں نے سڑک سے اٹھا کر نوکر رکھا تھا، اس کے سینے پر ایک ایسا نشان تھا جو صرف ہمارے خاندان کے مردوں کے پاس ہوتا تھا۔ تجسس کے مارے جب میں نے اس لڑکے سے اس کی ماں کی تصویر مانگی، جب میری نظر اس کی ماں کی تصویر پر پڑی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سردیوں کی وہ انتہائی طویل، وحشت ناک اور سیاہ ترین رات تھی جب آسمان کا سینہ چیر کر گرنے والی موسلا دھار بارش تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور بادلوں کی ہیبت ناک گرج اور بجلی کی کڑک سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے قدرت آج کسی بہت بڑے سانحے پر نوحہ کناں ہو یا پھر زمین والوں کے گناہ پر آنسو بہا رہی ہو۔ اور میں اپنی گاڑی کے اسٹیئرنگ پر انگلیاں جمائے اس ویران، سنسان اور جنگل بیابان سے گزرتی ہوئی شاہراہ پر اکیلی ماہو سفر تھی، جہاں حد نگاہ تک صرف تاریکی، دھند اور موت کے سناٹے کا راج تھا، اور گاڑی کے وائپر شیشے پر گرنے والے پانی کو ہٹانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے، مگر دھند اور بارش کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ چند فٹ کے فاصلے پر بھی کچھ دیکھنا محال ہو چکا تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی اداسی، بے چینی اور انجانے خوف کا ڈیرا تھا، کیونکہ والد کے انتقال کے بعد سے میں اس بڑی دنیا میں اور اپنی ہی حویلی میں بالکل تنہا رہ گئی تھی، اور آج بھی شہر سے واپس آتے ہوئے مجھے کافی دیر ہو گئی تھی کہ اچانک ہیڈ لائٹس کی مدھم اور لرزتی ہوئی زرد روشنی میں سڑک کے کنارے نصب ایک پرانے، ٹیڑھے اور رنگ آلود بجلی کے کھمبے کے نیچے مجھے ایک لرزتا ہوا سایہ دکھائی دیا، جو شاید سردی کی شدت سے سکڑ کر ایک بے جان گٹھری کی مانند کیچڑ اور گندگی میں پڑا تھا، اور انسانی ہمدردی کے ناطے یا شاید قدرت کے کسی ان دکھ اور پراسرار اشارے کے تحت میرے پاؤں نے خود بخود بریک پر زور سے دباؤ ڈالا، جس سے گاڑی گیلی سڑک پر پھسلتے ہوئے ایک خوفناک اور دل دہلا دینے والے جھٹکے سے رک گئی، اور میں نے کانپتے ہاتھوں سے شیشہ نیچے کر کے باہر جھانکا تو دیکھا کہ وہ ایک کم عمر اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا لڑکا تھا، جس کے جسم پر موجود کپڑے تار تار ہو چکے تھے، اور بارش کا یہ بستا پانی اس کے کمزور اور لاغر وجود کو بری طرح بھگو رہا تھا۔ اس کے نیلے پڑتے ہونٹ، لرزتا جسم اور بھوکی ویران آنکھیں دیکھ کر میرا دل میں ایک عجیب سی ٹھیس اور درد اٹھا، جو شاید خون کی کشش تھی، جسے میں اس وقت سمجھنے سے قاصر تھی، کیونکہ عقل بار بار کہہ رہی تھی کہ اس سنسان جگہ رکنا خطرے سے خالی نہیں، اور یہ کوئی ڈکیت یا دھوکے باز بھی ہو سکتا ہے، مگر دل نے سختی سے فتویٰ دیا کہ اسے یوں بے یار و مددگار چھوڑ کر جانا انسانیت قتل ہوگا۔ لہٰذا میں نے بغیر کسی خوف کے گاڑی کا دروازہ کھولا اور تیز بارش میں بھیگتے ہوئے اپنی قیمتی گرم شال اس کے تھڑ تھڑاتے ہوئے زخموں سے چور کندھوں پر ڈال دی، اور اسے سہارا دے کر گاڑی کی اگلی نشست پر بٹھا لیا، جہاں ہیٹر کی گرمائش نے اس کی بے جان رگوں میں زندگی کی رموک دوڑائی، تو اس نے نیم اور خوف زدہ آنکھوں سے میری طرف دیکھا، جن میں شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ایک انجانا سا خوف بھی تھا، جیسے اسے یقین آ رہا ہو کہ کوئی اسے اس جہنم سے بچا بھی سکتا ہے، اور میں اسے لے کر اپنی اس آبائی حویلی کی طرف روانہ ہو گئی، جہاں کبھی قہقہے گونجتے تھے اور خوشیاں رقص کرتی تھیں، مگر اب میرے بابا دادا کی شاندار روایات، میرے چچاؤں کی ہوس، لالچ، خود غرضی اور سازشوں کی نظر ہو چکی تھی، جہاں میں اپنے ہی گھر میں ایک اجنبی، لاوارث اور قیدی کی طرح زندگی گزار رہی تھی، کیونکہ والد کے انتقال کے بعد حویلی کا پورا نظام، تمام کاروبار اور جائیداد کی مختاری میرے ظالم اور بے حس چچاؤں کے ہاتھ میں تھی۔ جب میری گاڑی حویلی کے وسیع اور رئیس قدیم اور پرشکوہ پورچ میں رکی تو برآمدے میں بڑی بڑی آرام دہ کرسیاں پر برجمان اور حقے گڑگڑاتے ہوئے میرے دونوں چچا اور ان کے آوارہ مزاج اور بد تمیز بیٹے شاید کسی زمین کے جھگڑے یا گاؤں کے کسی غریب کسان کی زمین ہڑپنے پر بحث کر رہے تھے، اور ان کی شکاری نظریں جیسے ہی گاڑی سے اترتے ہوئے اس میلے کچیلے، بدبودار اور کیچڑ میں لتھڑے ہوئے لڑکے پر پڑی تو ان کے چہرے پر شدید ناگواری اور غصہ اور نفرت کے سائے لہرا گئے۔ خاص طور پر میرے بڑے چچا نے اپنی تسبیح رو کر حقارت سے زمین پر تھوکتے ہوئے گرجدار اور کراہت آواز میں کہا کہ بیٹی، یہ تم کس سڑک چھاپ فقیر، بیکاری اور گندی نالی کے کیڑے کو اٹھا لائی ہو؟ کیا اس حویلی میں نوکروں کی کمی ہے جب ہمیں ان جیسے گھٹیا اور کم ذات لوگوں کو بھی برداشت کرنا پڑے گا؟ اور چھوٹے چچا نے بھی فوراً لقمہ دے کر، ان لاوارثوں کا کوئی دین مان نہیں ہوتا، یہ کل کو چوری کر کے بھاگ جائے گا اور ہماری بدنامی ہوگی۔ لیکن میں نے ان کی زہریلی باتوں، طعنوں اور طنز کے تیروں کو نظر انداز کرتے ہوئے ملازم کو آواز دی اور اس لڑکے کو مہمان خانے کے بجائے سرونٹ کوارٹر کے ایک کمرے میں ٹھہرانے کا انتظام کیا، کیونکہ میں بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر میں نے اسے اپنی نگرانی میں نہ رکھا تو حویلی کا زہریلا ماحول اور میرے چچاؤں کی نفرت کچا نگل جائے گی، اور میں نے اس وقت فیصلہ کر لیا یہ لڑکا میرا ذاتی ملازم ہوگا، تاکہ چچاؤں اور ان کے بیٹوں کی منحوس نظروں سے بچا رہے اور اسے 2 وقت کی روٹی عزت سے ملتی رہے۔ پھر ایک رات جب حویلی کے در و دیوار نیند کی آغوش میں تھے، میں نے دیکھا وہ لڑکا حویلی کے پچھلے حصے میں موجود میرے والد کے
इस्तबाल में इनके पसंदीदा घोड़े के पास बैठा इसे सहला रहा था और इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने चुप कर इसे देखा तो वो घोड़े से बातें कर रहा था, जैसे वो इसे सदियों से जानता हो। और हैरत की बात यह थी कि वो बदतमीज घोड़ा जो किसी अजनबी को करीब नहीं आने देता था, इस लड़के के हाथ लगाने पर सुकून से खड़ा था, जैसे इसे अपने असली मालिक की बू आ गई हो। इस मंजर ने मेरे दिल में पहली बार ये शक पैदा किया कि ये लड़के का इस हवेली से कोई रूहानी ताल्लुक ज़रूर है, वरना ये बेज़ुबान जानवर यूं सर ना झुकाता। अगले चंद दिनों और हफ्तों में इस लड़के ने अपनी अनथक मेहनत और ईमानदारी, वफादारी और खामोशी से घर के दिगर मुलाजमीन में तो अपनी जगह बना ली, लेकिन मेरे चचाओं और इनके बिगड़े हुए बेटों के लिए वो अब भी आंख का कांटा था और वो इसे जलील करने का कोई मौका भी हाथ से जाने नहीं देते थे। कभी इसे झूठी चोरी का इल्ज़ाम देते, कभी इसे धक्के देते, तो कभी बिला वजह इस पर हाथ उड़ाते और गंदी गालियाँ देते। एक दिन बड़े चचा के बेटे ने जानबूझकर इसके पैर पर गर्म चाय गिरा दी और जब वो तकलीफ से कराहा तो उन्होंने कहका लगाकर इसे मजीद मारने के लिए हाथ उठाया। मैंने दूर से ये मंजर देखा और तड़प कर वहाँ पहुंची, लेकिन मेरे बोलने से पहले ही इस लड़के ने जिस तरह अपना सर झुकाकर वो जिल्लत सही, इससे मैं एक ऐसी शराफत और वज़ादारी थी जो सिर्फ ख़ानदानी लोगों का हासा होती है। वो लड़का नौकर होकर भी इनसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ लग रहा था। मैं अक्सर अपनी लाइब्रेरी की खिड़की से इसे बाग में पौधों को कांटा छांट करते हुए या घोड़ों को नहलाते हुए देखती, तो मुझे इसके चलने फिरने, बात करने और काम करने के अंदाज में एक बहुत ही जानी पहचानी झलक महसूस होती, जैसे मैं इसे पहले भी कहीं देख चुकी हूँ। या शायद ये मेरा वहम था जो तन्हाई और अपने बिछड़े हुए छोटे भाई की याद की पैदावार था, क्योंकि इंसान जब किसी अपने प्यारे को खो देता है तो इसे हर चेहरे में वही खोया हुआ शख्स नजर आता है। हत्ता कि एक शाम मैंने इसे हवेली के पुराने स्टोर रूम के बाहर एक टूटे हुए खिलौने को हाथ में लिए हसरत से देखते हुए पाया। वो खिलौना वही लकड़ी का घोड़ा था जो मेरे छोटे भाई का सबसे पसंदीदा था और जिस हादसे के बाद सब भूल चुके थे। वो लड़का इस खिलौने को ऐसे छू रहा था जैसे अपनी खोई हुई यादें तलाश कर रहा हो। मैंने जब इसे पुकारा तो घबरा गया और इसे वहीं छोड़कर भाग निकला, मगर इसकी आंखों में झलकने वाली वो पहचान मेरी बेचैनी को हद से ज़्यादा बढ़ा गई। मगर फिर गर्मियों की वो मनहूस हबसज़दा और शदीद गर्म दोपहर आई, जिसने मेरी ज़िंदगी का रुख हमेशा के लिए मोड़ कर रख दिया और माजी के वो तमाम भयानक राज जो कब्रों में दफन हो चुके थे अचानक मेरे सामने आ खड़े हुए। जब लोग के थप्पड़ चल रहे थे और लड़का बाग के कोने में लगे हुए नलके पर नहा रहा था, मैं इत्तेफाक से वहीं से गुजर रही थी। मेरी नज़र इसकी गीली और नंगी कमर पर पड़ी तो मेरे कदम ज़मीन पर गड़ गए, आंखें फटी की फटी रह गई और मेरी सांसें हलक में अटक गईं, क्योंकि इसकी कमर के बिल्कुल दरमियान में रीढ़ की हड्डी के ऊपर एक गहरा स्याह निशान था, जो कोई आम तिल या पैदाइशी निशान नहीं था, बल्कि एक महसूस किस्म का टैटू था जिसे बहुत महारत और नफासत से गुदा गया था। मेरी आंखों के सामने माजी का वो दरच्चा किसी फिल्म की तरह चलने लगा और मुझे वो दिन आज भी ऐसे याद है जैसे कल की बात हो। जब बाबा शहर से वापस आए तो इनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी, तमानियत और चमक थी और उन्होंने नन्हे मुन्ना को, जो इस वक्त बमुश्किल 2 साल का होगा, अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया और प्यार से चूमते हुए मुझे आवाज़ दी कि मेरी गुड़िया रानी जल्दी से इधर आओ, मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। और जब मैं भागती हुई इनके पास पहुंची तो उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे अपने पास बिठाया और फिर अपनी कमीज़ उतार दी और अपनी चौड़ी कमर मेरी तरफ करते हुए कहा, देखो ये क्या है। और मैंने देखा कि इनकी कमर पर एक बहुत ही खूबसूरत और रौबदार शाहीन का निशान बना हुआ है, जो इनकी ताकत की अलामत लग रहा था। और फिर उन्होंने हवेली के तमाम मुलाज़मीन, मुंशियों और घर के हर फर्द को बड़े हाल में जमा कर होने का हुक्म दिया। पापा चाहते थे कि आज आज वो अपनी विरासत और खून की पहचान को सबके सामने एक मोहर की सूरत में महफूज कर दें। उन्होंने एक खास टैटू बनाने वाले को शहर से बुलवाया था, जो अपने औजार निकाल कर वहीं हाल के अवस्थ में बैठ गया। बाबा ने सबकी मौजूदगी में ऐलान किया कि आज मैं इस हवेली के वारिस के जिस्म पर वो निशान नक्श करवाने जा रहा हूँ जो सदियों से हमारे खानदान के मर्दों का हासा रहा था, ताकि कल को कोई गैर हमारा खून का दावा न कर सके। उन्होंने इंतहाई शफकत और एहतियात से नन्हे मुन्ना को अपने घुटनों पर उल्टा लेटाया और इसकी छोटी सी नाजुक और दूर जैसी सफ़ेद कमर से कुर्ता हटाया तो वहाँ भी बिल्कुल वैसा ही लेकिन छोटा सा निशान गुदवाने का अमल शुरू हुआ। यकीन बनवाते वक्त बहुत रोया। इसकी वो छोटी सी चीखें आज भी मेरे दिल को चीर देती हैं, लेकिन बाबा ने इसका नन्हा सा हाथ अपने बड़े हाथ में थाम रखा और इसे चूमते रहे। जब वो निशान मुकम्मल हुआ तो बाबा ने इसे हवा में बुलंद करके एक गर्जदार कहका लगाया था। इनकी आवाज़ हवेली के कोने कोने में गूंजी थी जब वो सबके सामने बोले थे, देखो मेरी गुड़िया रानी, हवेली वालों,
یہ جو شاہین میری کمر پر بنا ہوا ہے، یہ میں نے آج تمہارے بھائی کی کمر پر بھی بنوا دیا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ کس شیر کا بیٹا ہے۔ دیکھو ذرا غور سے دیکھو، کیسا لگ رہا ہے؟ نشان لگ رہا ہے نا میرا شیر پتر، بالکل میرے جیسا اور میرے ہی رنگ میں رنگا ہوا۔ اب چاہے آندھی آئی یا طوفان، کوئی بھی اسے مجھ سے اور میرے سائے سے جدا نہیں کر سکے گا، کیونکہ یہ مہر میں نے اس کے جسم پر نہیں بلکہ اس کی قسمت پر لگا دی ہے۔ اور وہ اس بات سے کتنے بے خبر تھے کہ ان کی یہ بات ایک دن کتنی بھیانک سچائی بن کر سامنے آئے گی، اور یہی نشان اس یتیم کی زندگی کا واحد ڈر بنے گا جس کے سہارے وہ واپس اپنوں تک پہنچے گا۔ میرے ذہن میں ماضی کے درچے اب مکمل طور پر کھل چکے تھے اور یادوں کا ایک طوفان جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ مجھے وہ ایک ایک پل یاد آ رہا تھا جب میرے والد کی وفات کے بعد حویلی کی فضاؤں میں سازشوں کا زہر گھولا گیا۔ مجھے یاد آیا کہ کس طرح میرے دونوں چچاؤں نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پورے گاؤں اور برادری میں یہ منحوس خبر پھیلا دی تھی کہ جائیداد کا اصل وارث یعنی میرا چھوٹا بھائی زین اور میری پیاری ماں ایک ہولناک کار حادثے میں جل کر راکھ ہو گئے۔ وہ دن میری زندگی کا سیاہ ترین دن تھا جب حویلی کے کشادہ پورچ میں وہ دو جلی ہوئی لاشیں لائی گئیں جو اس قدر مسح ہو چکی تھی انہیں دیکھنا تو دور پہچاننا بھی محال تھا۔ چچاؤں نے اس قدر اداکاری کی، اتنا واویلا مچایا اور اس دھوم دھام سے جنازے اٹھائے کہ کسی کو ان لاشوں کی شناخت یا تحقیق کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ اور اسی غم اور ہمدردی کی آڑ میں انہوں نے ساری جائیداد، کاروبار، حویلی کے سیاہ و سفید پر قبضہ کر لیا۔ مجھے محض ایک بوجھ اور نام کی حصہ دار بنا کر حویلی کے ایک کونے میں بٹھا دیا گیا جہاں میں برسوں سے ان کے رحم و کرم پر جی رہی تھی، لیکن اب اس لڑکے کی کمر پر موجود وہ شاہین کا نشان میرے اندر شک اور امید کے ہزاروں تلاطم خیز طوفانوں کو جنم دے رہا تھا۔ میرا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ حادثہ محض ایک ڈرامہ، ایک ہولناک فریب اور جھوٹ کا پھلدا ہو۔ کیا حقیقت وہ نہیں تھی جو ہمیں دکھائی گئی؟ میں نے اپنے دل کے بے ترتیب دھڑکنوں پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اس لڑکے کو آواز دی جو صحن میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے اسے فوراً اپنے کمرے میں طلب کیا۔ وہ ڈرتا، لرزتا اور کانپتا ہوا اندر داخل ہوا، جیسے اسے یقین ہو کہ آج اسے کوئی ایسی خطا ہو گئی جس کی سزا اسے حویلی سے بے دخلی کی صورت میں ملے گی۔ وہ اپنے گیلے اور کیچڑ میں لتھڑے ہوئے کپڑوں کے ساتھ دروازے کے پاس ساکت کھڑا ہو گیا۔ میں نے تیزی سے قدم بڑھا کر کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ اندر سے بند کیا اور مضبوطی سے کنڈی لگا دی تاکہ باہر کا کوئی پرندہ بھی اندر نہ جھانک سکے۔ میں نے اسے انتہائی نرمی سے اپنے قریب لایا اور پھر لرزتے ہاتھوں سے اس کی کمر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نشان کے بارے میں سوال کیا تو پہلے تو بری طرح گھبرا گیا۔ اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی اور ٹالنے کی کوشش کرنے لگا۔ جب میں نے اس کا کندھا پکڑ کر سختی سے اصرار کیا اور اسے یہ یقین دلایا کہ اسے کچھ نہیں کہا جائے گا بلکہ میں اس کی محافظ بنوں گی، تو اس کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اس کی ہچکیاں بند گئیں اور اس نے روتے ہوئے بتایا کہ باجی مجھے کچھ یاد نہیں کہ میرا اصل گھر کہاں ہے، میرے بابا کون تھے یا میرا خاندان کیا تھا۔ بس مجھے اتنا یاد ہے کہ میری ماں مرتے دم تک مجھ سے یہی کہتی تھی کہ بیٹا اپنی کمر کا یہ نشان کبھی کسی غیر کو نہ دکھانا، اسے دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھنا، کیونکہ یہی تمہاری زندگی کا سب سے بڑا راز ہے اور اسی ایک نشان کی وجہ سے تمہارے دشمن تمہاری جان کے در پہ ہو سکتے ہیں۔ اس نے روتے ہوئے مزید کہا کہ اس کی ماں کی اکثر راتوں کو اسے سینے سے لگا کر روتی تھی۔ اس کی یہ باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکلنے لگی اور میرے ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے پڑ گئے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے حویلی کی چھت مجھ پر گرنے والی ہے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس اپنی ماں کی کوئی نشانی، کوئی پرانا ہاتھ یا کوئی تصویر ہے جس سے ہم تمہارے ماضی کا سراغ لگا سکیں؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا جیسے اپنے ذہن کے بند خانوں میں کچھ تلاش کر رہا ہو، پھر اچانک سے اسے کچھ یاد آیا۔ وہ دیوانہ وار بھاگتے ہوئے باہر گیا اور تھوڑی دیر بعد ایک پرانا میلا کچیلا اور جگہ جگہ سے پھٹا ہوا پلاسٹک کا چھوٹا سا لفافہ لے کر آیا۔ اس نے بتایا کہ یہ لفافہ اس کی ماں نے اسے مرتے وقت دیا تھا اور یہ اس رات بھی اس کی مٹھی میں مضبوطی سے دبا ہوا تھا جس رات وہ سڑک پر بے یار و مددگار پڑا تھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے وہ لفافہ کھولا تو اس کے اندر ایک بہت ہی پوشیدہ، کئی تہوں میں مڑی ہوئی اور کناروں سے گلی ہوئی سیاہ و سفید تصویر۔ جیسے ہی میں نے اس تصویر کو سیدھا کر کے دیکھا، میرے حلق سے ایک ایسی فلک شگاف چیخ نکلی جو شاید حویلی کی بنیادوں تک جا پہنچی۔ میرے سامنے میری کائنات بکھر رہی تھی، کیونکہ اس تصویر میں موجود وہ خاتون کوئی اجنبی یا غیر نہیں تھی، وہ میری اپنی سگی ماں تھی جن کی شفقت بڑی مسکراہٹ آج بھی میری روح میں بسی ہوئی تھی۔ ان کی گود میں جو مسکراتا ہوا گول مٹول اور معصوم بچہ وہ یقیناً میرا وہی چھوٹا بھائی زین تھا جسے برسوں پہلے کاغذات میں مردہ قرار دے کر اس کی برسی منائی جا رہی تھی۔
इस हौलनाक इंकशाफ ने मेरे पूरे वजूद को हिला कर रख दिया। मेरी आंखों से आंसू का एक ऐसा सैलाब जारी हो गया जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। मुझे पल भर में इन दरिंदा सफ़ात चाचाओं की सारी शैतानी कहानी समझ आ गई। वालिद के मरने के बाद जायदाद की होश में उन्होंने मेरी माँ और मेरे मासूम भाई को रास्ते से हटाने के लिए ये सारा खूनी खेल खेला था। उन्होंने कार को आग लगाई ताकि कोई सबूत बाकी न रहे, लेकिन शायद मेरी माँ कुदरत के किसी मोजे के तहत इस आग से बच निकली और वो इस नन्हे बच्चे को लेकर दूर किसी नामालूम मुकाम पर रूपोश हो गई ताकि कम अज़ कम इस हवेली का वारिस तो महफूज रहे। उन्होंने सारी ज़िंदगी दर दर की ठोकरें खाई, गुर्बत और अफलास की चक्की में पिसी, मगर कभी हवेली का रुख नहीं किया, क्योंकि वह जानती थी कि यहाँ मौत हर मोड़ पर इनका इंतज़ार कर रही है। और अब देखो कुदरत का वो अजीब और गरीब और बेआवाज़ इंसाफ के वही असल वारिस जो जिसे मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की गई थी, कुदरत के हाथों दोबारा घूम फिर कर इसी हवेली में आ गया था, जहाँ वो एक हकीर नौकर गुलाम बनकर रह रहा था। मेरा खून खौलने लगा और मुझे अपने इन चचाओं के हर इस हमदर्दी और हर इस अमल से घिन आने लगी जो उन्होंने पिछले कई सालों में मेरे साथ रवा रखा था। इनके चेहरों के पीछे छुपे हुए होनहार पेड़िए अब मुझे साफ नजर आ रहे थे, लेकिन मुझे जज्बाती होकर सब कुछ तबाह नहीं करना था, बल्कि मुझे अब अक्ल और होशमंदी की बसात बिछानी थी, क्योंकि मेरा भाई अभी तक इन दरिंदों के रहमो करम पर था और एक गलती हम दोनों की मौत बन सकती थी। मैंने जैन को वही कमरे के एक गोशे में छुपने का हुक्म दिया और खुद दीवाना वार हवेली के इस पिछले हिस्से की तरफ भागी, जहाँ पुरानी मुलाजमा मासी की कोठरी थी। मासी मेरे बाबा के बचपन से इस हवेली में थी और वो इस घर के हर राज की अमीन थी। मैंने मासी को इसकी दोपहर की नींद से झंझोड़ कर बेदार किया और इसे बाजू से पकड़कर घसीटती हुई अपने कमरे में लाई। मासी मेरी इस दीवानगी, बिखरे हुए बाल और बौखलाहट पर बुरी तरह घबरा गई और बार बार कांपते हुए पूछ रही थी कि बेटा रानी क्या हुआ है तो है, तुम इस तरह क्यों कांप रही हो। मैंने कोई जवाब न दिया और इसे लाकर जैन के सामने खड़ा कर दिया। मैंने जैन को हुक्म दिया कि वो अपनी कमीज ऊपर करे। जैसे ही मासी की बूढ़ी कमजोर और धुंधलाई हुई आंखों ने जैन की कमर पर वो खानदानी शाहीन का निशान देखा, इसके कदमों से जैसे जमीन सरक गई। इसने अपने सीने पर जोर से हाथ मारा और एक ऐसी दिलहरास चीख मारी कि मेरा कलेजा कांप उठा। वो वहीं फर्श पर ढेर होगी और अपने दोनों हाथों से अपना सर पीटना शुरू कर दिया और ज़ारों के तार होते हुए चिल्लाने लगी, या अल्लाह, ये मैं क्या देख रही हूँ? क्या मुर्दे भी कब्रों से वापिस आते हैं? ये तो मेरे मरहूम बड़े सरकार का वो महसूस निशान है जो उन्होंने हवेली के हाल में सबके सामने बनवाया था। ये तो मेरा छोटा ज़ैन है जिसे हमने बरसों पहले मिट्टी तले दबा दिया था। मासी के इन अल्फाज ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। मासी को भी यही लगता था कि वो हादसा सच्चा था और वो लाशें इन्हीं की थी, लेकिन आज इस जिंदा वारिस को देखकर इसका भी कलेजा मुंह को आ गया था। अगर ये बच्चा जिंदा है तो फिर वो लाशें किन की थी जिन्हें हमने अपने हाथों से मिट्टी में उतारा था। मासी दीवानों की तरह जैन के पैर चूमने लगी और इसे गले लगाकर ऐसा बयान करने लगी जैसे बरसों का दबा हुआ गम आज पट पड़ा हो। वो बार बार कह रही थी, मेरे बच्चे, तू तो अपनी ही जमीन पर ठोकरें खाता रहा और हम तुझे पहचान न सके। मैंने बड़ी मुश्किल से मासी को जबरदस्ती होश कराया और सिद्ध के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर इसे कड़ी कसम दी कि ये बात इस कमरे की दीवारों से बाहर नहीं जानी चाहिए। मैंने इसे समझाया कि मासी खबरदार, अगर किसी को कानो कान खबर भी हुई, क्योंकि अगर चचाओं को ज़रा भी शक पड़ गया कि इनका भयानक राज फाश हो चुका है तो वो सबूत मिटाने के लिए इस बार जैन को जान से मार देंगे और शायद हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मासी ने कांपते हुए अपने दुपट्टे के पल्लू से आंसू पोंछे और कुरान की कसम खाई कि वो अब सच का साथ देगी और मरते दम तक जुबान नहीं खोलेगी। इसके बाद मासी अपने कांपते कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल गई। इसके चेहरे पर खौफ और हैरत का वो इम्तजाज था जिसे देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि अब ये जंग शुरू हो चुकी है। मासी के कमरे से निकलने के बाद हवेली की फिजाओं में एक ऐसी बोझल, वहशतनाक और दम घुटती हुई खामोशी छा गई थी जो किसी हौलनाक तूफान का पेशा है मालूम होती थी। और मैं अपने इस बिछड़े हुए भाई के पास फर्श पर ही बैठ गई, जिसके चेहरे पर अभी तक हैरत फैली हुई थी और सदमे के गहरे साए लहरा रहे थे। मैंने इसके खुरदरे, मैले और मुशक्कत से भरे हाथों को अपने हाथों में लिया और इन्हें शिद्दत से चूमने लगी, क्योंकि इन हाथों की लकीरों में हमारे खानदान की वो इज्जत और वक़ार छुपा हुआ था जिसे ज़माने की गिर्द और अपनों की बेहिसी ने आर्ज़ी तौर पर धुंधला दिया था। वो मासूमियत और बेगानगी से मेरी तरफ देख रहा था, जैसे इसे अभी अभी यकीन आ रहा हो कि इस कसम परसी की ज़िंदगी में अचानक ये तब्दीली कहाँ से आ गई। मैंने इसे तसल्ली दी और कहा, मेरे भाई, अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी बहन अब तुम्हारे और तुम्हारे हक के दरमियान किसी रुकावट को बर्दाश्त नहीं करेगी, लेकिन हमें अभी कुछ दिन और सब्र करना होगा। तुम इसी तरह नौकर बनकर रहना होगा ताकि इन दरिंदों को ज़रा भनक ना पड़े कि इनका दफनशुदा राज बेनकाब हो चुका है, क्योंकि अगर इन्हें शक हुआ तो हमें मिटाने में एक पल की देर नहीं करेंगे। इसने लरजती आवाज़ में कहा कि बाजी, आप जो कहेंगी मैं वही करूँगा, बस मुझे दोबारा इन सड़कों पर ना भेजना जहाँ कोई किसी का नहीं होता। इसकी ये बात मेरे दिल को चीर गई और मैंने तय कर लिया, अब चाहे मेरी जान चली, मैं इसे इसका मुकाम दिला कर रहूँगी।
दूंगी। मैंने इसे चुपके से वापस इसके क्वार्टर भेजा और खुद रात भर जाकर अपने मंसूबे पर काम करती रही। मुझे मालूम था कि सिर्फ टैटू का निशान दिखा देना काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि मेरे मकार चचा इसे जुटला सकते थे। इसे महज एक इत्फाक करार दे सकते थे। मुझे कुछ ऐसा करना था जो नाकाबिले तरदीद होता और जिसके सामने कायनात की कोई अदालत सर ना उठा सके। अगले दिन मैंने शहर जाने का बहाना बनाया और इस लड़के को अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया, ये कह कर के मुझे शहर से कुछ भारी सामान लाना है। वहाँ पहुँचकर मैंने शहर की सबसे बड़ी और मोतबर लेबॉर्ट्री का रुख किया और अपने और इस लड़के का डीएनए टेस्ट करवाया, ताकि साइंसी तौर पर साबित हो सके कि हमारी रगों में एक ही बाप का खून दौड़ रहा है। लेबॉर्ट्री वालों ने वक्त दिया और वो दिन मेरे लिए सदियों के बराबर था। आखिरकार वो रिपोर्ट आ गई, जिसने मेरे तमाम शक्कों को यकीन में बदल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मेरा और इस लड़के का डीएनए 100% मैच कर रहा था, जिसका मतलब था कि वो मेरा सगा भाई है। अब बारी थी इस हकीकत को सबके सामने लाने की, और मौका भी करीब था, क्योंकि मेरे चचा के बड़े बेटे की सालगिरह आ रही थी और उन्होंने इस मौके पर पूरे इलाके के मुअज़्ज़ज़ीन और बरादरी के बड़ों को मुद्दों का रखा था, ताकि वो अपनी दौलत और ताकत की नुमाइश कर सके। सालगिरह की शाम हवेली में चिरागा था, हर तरफ लोगों का हजूम था। खानदान के बुजुर्ग और गांव के नंबरदार सफ़ेद गल्फ लगे कपड़ों में बरामदे में बैठे हुक्के पी रहे थे। मेरे दोनों चचा फखर से मेहमानों के दरमियान घूम रहे थे, और वो लड़का जिसे अब मैं अपना भाई तस्लीम कर चुकी थी, पुराने कपड़ों में मेहमानों को पानी पिला रहा था। जब महफिल पूरी तरह जम गई और ख़ानदान के तमाम मुअज़्ज़ज़ीन एक जगह जमा हुए, तो मैंने महसूस किया कि यही वो वक्त है जब मुझे वार करना चाहिए। मैंने खामोशी से इन बुजुर्गों के दरमियान जा खड़ी हुई, जहाँ बाबा रहमत दीन और दीगर नंबरदार बैठे थे। मैंने नहायत अदब से कहा कि बाबा जी, आप सब यहाँ मौजूद हैं और आप हमारे ख़ानदान के हर सर्दो गर्म से वाकिफ़ हैं। आप सबको एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जो बरसों से इस हवेली के दीवारों में दफन थी। सब लोग मेरी तरफ मुतवज्जो हो गए। मेरे चचा ने मुझे टोकने की कोशिश की कि बेटी, ये वक्त इन बातों का नहीं है, तुम अंदर जाओ। लेकिन बाबा रहमत ने इन्हें रोक दिया और मुझे बोलने का इशारा किया। मैंने अपने भाई को आवाज़ दी और इसे इन बुजुर्गों के सामने खड़ा कर दिया, और फिर नहायत सुकून से कहा कि आप सब जानते हैं कि मेरे वालिद की कमर पर एक खास निशान था, जो इनकी पहचान था। उन्होंने मरने से पहले अपने बेटे की कमर पर भी वही निशान बनवाया था। बाबा रहमत ने इस बात में सर हिलाया और कहा, हाँ बेटी, वो निशान तो चौधरी साहब की निशानी थी। मैंने खामोशी से अपने भाई की कमीज़ पीछे से ऊपर कर दी, जिसे जैसे ही इसकी कमर पर मौजूद वो गहरा स्याह शाहीन का टैटू लोगों की नज़रों के सामने आया, तो वहाँ मौजूद बूढ़े अपनी जगह से खड़े हो गए। इनकी आंखों में हैरत और पहचान की चमक थी। बाबा रहमत ने आगे बढ़कर इस निशान को छुआ। इनकी आवाज़ कांपने लगी और बोले, खुदा की कसम, ये तो वही निशान है जो चौधरी साहब ने हमें फ़ख्र से दिखाया था। ये मेरा शेर पुत्र है। ये तो वही बच्चा है जिसे हमने हादसे में मरा हुआ समझ लिया था। मजमा में एक शोर बर्पा हो गया। मेरे चचाओं के चेहरों से रंगत गायब हो गई और वो चिल्लाने लगे, ये कोई बहरूपिया है, ये निशान नकली है, ये लड़का वारिस नहीं हो सकता। इनका लहजा गुस्सा और बौखलाहट का मगलूबा था। लेकिन मैंने इन सब से महलक हथियार निकाला। मैंने अपनी चादर के अंदर से मोहरा बंद लिफाफा निकाला और इसे बाबा रहमत के हाथों में थमा दिया। मैंने कहा कि चाचा जान, आप निशानी को नकली कह सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट को नहीं जुटला सकते। ये डीएनए रिपोर्ट है जो ये साबित करती है कि इस लड़के का खून मेरे खून से मिलता है और ये मेरा सगा भाई है। जब मुंशी जी ने वो रिपोर्ट बुलंद आवाज़ में पढ़कर सुनाई, तो हवेली के बरामदे में मौत जैसी खामोशी छा गई। इस दौरान बाबा रहमत दीन की गुस्सीली आवाज़ गूंजी। उन्होंने चचाओं की तरफ रुख किया और गर्ज कर पूछा, अगर चौधरी का असली असली वारिस और खून ये लड़का है जिसका डीएनए भी मैच कर गया, तो फिर वो जली हुई लाशें किन की थीं, जिनको तुम लोगों ने हादसे के बाद गांव लाकर बड़े शौक से दफनाया था और हमें कहा था कि ये चौधरी की बीवी और इसका मासूम बेटा है। ये सवाल सुनते ही मजमे में खलबली मच गई और लोगों ने चचाओं को घेर लिया। बाबा रहमत ने मजीद कहा कि अगर ये वारिस जिंदा है, तो इसका मतलब है तुम लोगों ने किसी और लावारिस माँ बेटे की लाशें वहाँ रखी थी, ताकि जायदाद पर कब्जा कर सको। अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हम अभी इन कब्रों को खुदवा कर इनका डीएनए टेस्ट करवाएंगे, ताकि ये पता चल जाए कि तुम लोगों ने कितना बड़ा गुनाह किया है और किन बेगुनाहों को कब्रिस्तान में दफनाया गया। ये सुनना था कि मेरे चचाओं के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इनके पास अब कोई जवाब नहीं था। वो पसीने में शराबूर हो चुके थे और इनकी खामोशी इनके जुर्म का एतराफ़ कर रही थी। मजमे में हर मजमे में मौजूद हर शख्स सब चचाओं को नफरत की निगाह से देख रहा था और हर ज़ुबान पर एक ही सवाल था कि आखिर उन्होंने इतनी बड़ी सफाकी कैसे की। बाबा रहमान ने नंबरदार को हुक्म दिया कि अभी गांव के 4 कड़ियल जवानों को लेकर कब्रिस्तान जाया जाए और इन कब्रों की निशानदाही की जाए जहां जायदाद के छोटे वारिस को दफनाया गया। मेरे चचाओं के चेहरों पर मर्दानी छा गई और उनकी ज़बानें गंग हो गईं, क्योंकि वह जानते थे कि अगर कब्रें खुदवाई गई तो डीएनए टेस्ट ना सिर्फ इस लड़के के वारिस होने को बल्कि इनके कातिल होने को भी साबित कर देगा। मासी, जो एक कोने में खड़ी सी ये सब देख रही थी, रोते हुए आगे बढ़ी और कहने लगी कि बाबा जी, मैंने इस हवेली में अपनी पूरी उम्र
गुजारी है। मैंने इनकी आंखों में हौस और लालच को देखा है, कैसे ये लोग झूठी बेटा की जायदाद को हथियाने के चक्कर में थे। आज अल्लाह ने सच दिखा दिया। इसके बाद मजमे का पारा चढ़ गया और लोग चचाओं पर डट पड़े। बाबा रहमत इन्हें रोकते हुए कहा कि इनका फैसला अब कानून करेगा। पुलिस, जो कि पहले ही मेरी इत्तला पर हवेली के बाहर मौजूद थी, अंदर दाखिल हुई और मेरे जालिम चचाओं और इनके बेटों को हथकड़ियाँ लगाकर गाँव के बड़े बूढ़ों ने इस बात पर इसरार किया कि कब्र कुचाई फौरी तौर पर सरकारी हुकाम की निगरानी में की जाए, ताकि इन बेगुनाह रूहों को भी इंसाफ मिल सके जिनकी लाशों को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। जब मेरे चचा को पुलिस की गाड़ी की तरफ ले जाया जा रहा था तो मैं इनके सामने जाकर पूरी कुव्वत से कहा कि चचा जान, आपने सोचा था कि आपने हर सबूत मिटा दिया, लेकिन आप ये भूल गए कि ज़मीन अपना कर्ज कभी नहीं रखती। आपने जिन लाशों को दफनाकर अपना इक़्तिदार कायम किया था, आज वही मिट्टी बोल उठी है। आपकी हर चाल, हर मकर, हर झूठ आज पाश-पाश हो गया, क्योंकि ज़ालिम का पौधा कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, इसकी जड़ें हमेशा खोखली रहती हैं। आपने समझा था कि आपने वारिस को ख़त्म कर दिया, लेकिन कुदरत ने इसे मेरे हाथ से बचाकर इस हवेली में वापस ला खड़ा किया। आज इस हवेली के दरो दीवार गवाही दे रहे हैं कि सच की फतह हो चुकी है। मजमे में मौजूद लोगों ने नारे बुलंद किए और हर तरफ इंसाफ का चर्चा होने लगा। मैंने अपने भाई को देखा, जो अभी तक हैरानी से इस बदलती हुई सूरत हाल को देख रहा था। मैंने इसका माथा चूमा और इसे बताया कि आज से तुम इस हवेली के नौकर नहीं, बल्कि वो शेर पुत्र हो जिसका हवा बाबा ने देखा था। कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि दुनिया में इंसान चाहे जितनी बड़ी चालें चाल ले, जितने भी बड़े गुनाह छुपा ले, कुदरत का अपना निज़ाम है जो कभी हता नहीं करता। जालिम की स्याह रात चाहे कितनी तवील क्यों न हो जाए, हक का सूरज इसे चीर कर निकलता है और गुनाहगार को इसकी की गई हर एक ज्यादती का हिसाब इस दुनिया में रसवाई की सूरत में देना पड़ता है। आप जो भी बुरा बीज बोते हैं, इसकी फसल एक न एक दिन आपको खुद ही काटनी पड़ती है, क्योंकि कायनात का हालिक नाइंसाफ़ी को कभी दौम नहीं देता। सच अपना रास्ता पहाड़ों को चीर कर भी बना लेता है और झूठ का अंजाम हमेशा ज़िल्लत ही होता है। हवेली में आज बरसों बाद एक सुकून की लहर दौड़ी थी, क्योंकि इसके असली वारिस को इसका मुकाम मिल गया था और गुनाह के बादल छुट चुके थे। नाज़रीन, आपको आज की कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।